hopefully we are going to wind up this topic, that is the Python and the methods and its type in Python. So in last videos I have already suggested you the type of functions that we are supposed to use in Python. Hopefully the points and the things was very clear to you. Just I am giving a reminder to you all that in Python we are having the two categories of the functions. One is called pure functions, means the all functions that are referred by the system manufacturers. They are called to be the pure. Pure means the structure and the culture of calling the function will be same, but pure is just refers to that the system is going to provide the function and we will have to use. Now we are just discussing the user defined function, that is the part of the impure, and I have given you the structure like the 4 prototypes of the function, and in this class I am just going to discuss that all, and by that all you all will clear your doubts. Like we are having the 4 structures for the function. You can call it as with arguments, with return. The second was with arguments, no return. Third is no arguments, with return. And fourth is no arguments, no return. I just want to tell you that the most famous function among the programmer is no argument, no return, because all the works has to be done in the declaration as well as the manipulation part. So user is just there to call the function. That is why that is the very easiest and safest type of function. Now you can say that if we are going to declare the types of functions, so you can find, if I am going to take the help of def prime, or today we are going to change the program. Today we are not going to make the program for prime. Today we are going to make the program for an Armstrong number. So name of the function will be Armstrong. This will be the structure of with argument, with return, and argument will be here like A. So this is the declaration part of with argument, with return. That means what? If we are taking an argument as A, if the result will be calculated, then the result is not going to be print within the function manipulation part. Instead, we will have to pass the number from the calling part, as well as we have to print the result in the calling part. Got it? Second is your with argument, no return. That means argument will be there, but the result will be print inside the manipulation part. That means the calling part is only responsible to pass an argument. So that is with argument, no return. Now no argument, with return. So certainly the function body or the parameter place will be vacant this time, because there is no argument, and no argument, but in this the result will be returned to the calling section. And fourth is no argument, no return. So the declaration part will be def Armstrong, and you can see we don't have any argument.
Clear hai? Any doubt about that? These are the type of functions and these are the declaration part of the function, and in this class I am going to discuss all those 4 types of functions that we can create in the Python. Now let us consider with the first one. हटा सकते हैं इसको? हटा दें? हटा दें? Now see, first function with argument with return. So the same parameter like def Armstrong. You know what is an Armstrong number? Armstrong numbers are refers to those number whose digits and their cubes and sum is equal to that. Like if 153 is there, so the cube of 3 will be 27, the cube of 5 will be 125, and the cube of 1 will be 1. So it becomes 153. So later on we will have to check if this particular value and this particular value is equals, then we will say that that number is to be an Armstrong. Now def Armstrong, here I am taking a number as an argument, and we can declare the variables like b is equals to 0, c is equals to 0, d is equals to 0, and e is equals to 0. Why we are taking the b, c, d and e as a 0? Because we don't want to keep the b, c, d, e any garbage value. That's why we have assigned. Now copy the value of a to b, so that after breaking the number should be checked. So a will be transferred to b. Now we will take a while loop while b should be greater than 0. B should be greater than 0 and C is equals to B mod by 10. What will happen with this statement? If we are having the 153 and if it is going to divisible or divide by 10, so 10 1 ja 10 and 10 5 ja 50, you can see the remainder will becomes 3. So 3 will be copied to C. Now we have to find the cube of this particular 3. So I am taking here D is equals to C into C into C. By this action, the cube of C will be stored in D, and now we have to add it also. That's why E is equals to E plus D. So ultimately, the value of E is right now E is how much? That is 27. That is 27. Now we have to use here the upgrade section of B also. तो अभी B का क्वेश्चन पार्ट चाहिए. So what we will use? B is equals to B floor by 10. So by this action, now as the value was 153, we have already taken the question, the remainder part, that is 3, and now we have the need of this particular quotient. So by this step, you can say B is equals to B floor by 10. So we will get 15. So as the statement will move to the up, now this will check if whether the 15 is greater than 0 or not. Of course 15 is greater than 0. So it will come down, and again this time 15 will be divided by 10. So 10 1 ja 10, and you will assume the 5 as the result. That will be in C. And as we have to find the cube, so 5 ka cube how much? 125. So now what? 27 is equals to 27 plus 125. That will be calculated in E. And similarly, if we have to use this particular quotient, so now the value of B becomes 1. Now this will check whether 1 is more than 0 or not. Yes, of course it is greater than 0. Again it will come down, and 1 mod by 10, the result will be 1, and the cube of 1 becomes 1.
So 152 is equals to 152 plus 1, that is 153. Now C is going to conceive 153, and what kind of value it is going to achieve you can't predict. You can only predict when you have entered the value like that. आप जो भी वैल्यू वहां पे इंटर करोगे उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली ही आप वहां पे आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते हो. नाउ अब ये लूप का काम कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल हैव टू कम आउट फ्रॉम द लूप. बट द थिंग इज दैट कि आपने जो प्रोग्राम डिसाइड करा है दैट इज द विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न. सो द चेक विल बी हियर. व्हाट काइंड ऑफ चेक we must have to use here? We must have to use here if A equals to B. What was the value of A? That was 153. And what is going to be conceived by E, not B, conceived by E? Whatever, if it is equals to 153, then the result should be returned. How much? 1. Else return 0. This was the work of your declaration of your function, defining of the function, naming of the function, and this was the manipulation of the function. Now we have to move to the calling part, and at the below of this program, from where we will have to call it as the function was earlier mentioned. Functions में हम लोगों ने पहले ही कहा था कि ये फंक्शन हमारा विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न है. तो आप लिखोगे यहां से फंक्शन के बाहर आके लिखोगे. आपको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए तो हम लोग लिखते हैं z इज इक्वल्स टू int इनपुट इंटर अ नंबर. एक नंबर आपने z में इनपुट करा दिया. अब आप फंक्शन को कॉल करोगे कैसे? तो हम लोग कह रहे हैं k इज इक्वल्स टू आर्मस्ट्रॉन्ग, और यहां से पैरामीटर ये क्या लेके जाएगा? z. नाउ द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर विल बी रिटर्न टू k. और अब आपको k को चेक करना है कि इफ k इक्वल्स टू z, क्योंकि जो वैल्यू k लेके आया है और z में जो वैल्यू हम भेज रहे हैं, अगर वो दोनों वैल्यू इक्वल है, देन वी विल हैव टू प्रिंट यस द नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्स प्रिंट the number is not an Armstrong. क्लियर है? तो दिस वॉज बेस्ड अपॉन विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न. मैं आपको फिर से इसको एक ब्रीफ आपको दे दूं, और आप देखो यहां से कंफ्यूज मत करो, ये मैं हटा रहा हूं. यू जस्ट हैव टू सी फ्रॉम दिस पोजीशन. What will happen when this function is going to be run or executed? आपने फंक्शन डिक्लेयर किया आर्मस्ट्रॉन्ग, डेफ आपका कीवर्ड है, और बी सी डी और ई कुछ वेरिएबल्स हमने लिए हैं जिसमें कुछ वैल्यूज हमें कॉपी करने हैं. 0 हमने इसलिए लिया ताकि ये किसी भी तरह का कोई गार्बेज वैल्यू एक्सेप्ट ना करे, और चूंकि ए को अभी आप ए की कॉपी हमने बी में इसलिए कराई है क्योंकि अगर मान लो ए या बी किसी को भी लेके आप आगे जा सकते थे, तो कोई भी एक वेरिएबल जो है उसका वैल्यू अल्टीमेटली 0 हो रहा है, तभी आप लूप से बाहर आ रहे हैं. तो अगर मान लो हमने ए को बी में नहीं रखा होता तो हाउ वी विल चेक? तो चलिए हमने कहा कि v शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी अगर 153 को एज्यूम करते हैं इस नंबर को, तो क्या 153 0 से बड़ा है? हाँ बड़ा है. और अब ये इस स्टेटमेंट पे आएगा, और c इज इक्वल्स टू b मॉड बाय 10 आप करते हो, तो 153 का जो रिमाइंडर पार्ट है वो 3 है, तो 3 विल बी कम्स इन c, और यहां से हम लोग उसका क्यूब निकाल रहे हैं, एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू d.
आफ्टर दिस हम उस क्यूब को एक वेरिएबल में ऐड भी कर रहे हैं, दैट इज योर ई, और यहां से b के वैल्यू को हम छोटा भी कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट टाइम अगर ये 153 था तो सेकंड टाइम इसको 15 हो जाना चाहिए था, और थर्ड टाइम इसको 1 हो जाना चाहिए था। तो फर्स्ट टाइम में अभी आप देखो यहां से ये 15 यहीं से हो रहा है। जैसे ही आपने कहा b इज इक्वल्स टू b फ्लोर बाई 10, तो अभी 153 का क्वेश्चन पार्ट होगा 15, तो अब b कितना हो गया 15। तो अब जब ये लूप, अब देखो ये इफ जो है वो लूप के बाहर है, लूप की बॉडी यहीं तक है। अब ये फिर ऊपर जाएगा क्योंकि ये आइटरेशन स्टेटमेंट है, तो अभी चेक करेगा कि क्या b जो 15 है वो 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, नीचे आएगा, और इस बार 15 का मॉड हम लोग करेंगे 10 से, तो वी विल रिसीव द 5 देयर, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, दैट विल बी स्टोर्ड इन डी, और बोलेंगे कि 27 जो पहले से ही में स्टोर था, तो उसको भी आप एज्यूम करिए कि 27 इज इक्वल्स टू 27 प्लस 125, तो दिस बिकम्स 152, और d अभी जो 15 था, जैसे ही फ्लोर डिवीजन आप करते हो द क्वोशिएंट विल बी 1। चेक करेगा कि क्या 1 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, और 1 का मॉड अगर आप 10 से डिवाइड करते हो, तो याद रखिएगा मॉड जब आप निकालते हो तो जो भी यहां छोटा वैल्यू है, अगर 9 भी रहता तो 9 रिटर्न करता, 11 रहता तब डिवाइड करता, 11 को 10 से डिवाइड करेगा क्योंकि 11 बड़ा वैल्यू और 10 छोटा है, लेकिन इससे जो छोटा वैल्यू है वो डिवाइड नहीं करेगा, कंप्यूटर डेसिमल यूज नहीं करेगा, वो जो छोटा वैल्यू है लौटाएगा। तो अभी 1 है तो 1 का क्यूब भी 1 हो जाएगा, और 152 इज इक्वल्स टू 152 प्लस 1, दिस बिकम्स 153। लेकिन जैसे ही b का फ्लोर करेंगे तो 1 का जो फ्लोर डिवीजन है वो 0 हो जाएगा, लूप फिर से ऊपर जाएगा और चेक करेगा कि क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं 0 0 से बड़ा नहीं है, द लूप विल ब्रेक्स एंड नाउ वी विल रीच टू दिस स्टेटमेंट। अब हम चेक कर रहे हैं कि a की जो वैल्यू हमने ली थी और e में जो वैल्यू हमने स्टोर किया है, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो आप यहां से रिटर्न करो। आपका सवाल हो सकता है कि सर अगर a और e यहां पे इक्वल है तो हम क्यों ना यहीं पे प्रिंट कर दें कि हाँ ये नंबर आर्मस्ट्रांग है, बिकॉज आपने पहले ही डिसीजन लिया है कि हम लोग विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न पे जाएंगे। तो जब कभी भी रिटर्न की बात होगी तो रिजल्टेंट जो है वो यहां प्रिंट नहीं होगा, रिजल्ट जो है वो कॉलिंग सेक्शन को थ्रो करेगा। तो इसीलिए हमने यहां पे एक फ्लैग वेरिएबल लगाया कि अगर ये स्टेटमेंट सही है तो आप 1 वैल्यू रिटर्न करो, और अगर ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं है ना कि हर डिजिट का क्यूब और उसका सम उसके इक्वल ही हो, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये 0 भी रिटर्न करेगा, तो आइदर रिटर्न ये करेगा 1 या रिटर्न करेगा 0। अब आप चले आओ कॉलिंग सेक्शन में, तो कॉलिंग सेक्शन आपको इस डेफ के बाहर यहां लिखना है, डेफ के अंदर नहीं लिखना है, डेफ के बाहर लिखना है। तो चूंकि एक आर्ग्यूमेंट था, दैट्स वाई z में हमने एक नंबर इनपुट कराया, z में एक नंबर की एंट्री हुई, और फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं तो कॉल करते समय चूंकि यहां से रिटर्न हो रहा था, इसलिए हमने k नाम के वेरिएबल को यहां पे अपॉइंट करा, और k क्या कर रहा है, इट इज जस्ट गोइंग टू रिसीव द वैल्यू। लेकिन सबसे पहले फंक्शन रिटर्न होने के पहले जब कॉल होगा तो सबसे पहले z का वैल्यू ऊपर जाएगा a को, द वैल्यू ऑफ z विल बी ट्रांसफर टू a, और a पूरा का पूरा मैनिपुलेशन करके वहां से वैल्यू को रिटर्न करेगा, एंड द रिटर्न पार्ट विल रिटर्न ईदर 1 और 0 टू k। लेकिन 1 और 0 आने का मतलब है कि ये नंबर दोनों इक्वल था। तो आप यहां से ऐसे भी कर सकते हो, और एक प्रोसेस आपका ये भी हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि k इक्वल्स टू 1 अगर है तो भी ये आर्मस्ट्रांग है, नहीं तो ये आर्मस्ट्रांग नहीं है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि k में, अच्छा उस प्रोसेस से कभी भी आर्मस्ट्रांग आपका नहीं आता, आपको यहां लिखना पड़ता कि z और a अगर इक्वल, लेकिन नंबर तो टूट चुका है तो 1 इज द सफिशिएंट थिंग, आपको यहां 1 ही लिखना चाहिए कि अगर k 1 के इक्वल है तो वो नंबर आर्मस्ट्रांग है, नहीं तो वो आर्मस्ट्रांग नहीं है। इज इट क्लियर टू यू। तो ये एक फंक्शन हमने बताया जिसका पर्पस था विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न। अभी देखो
इसी फंक्शन में हम चेंज कर रहे हैं, और इस बार दूसरा फंक्शन हमारा क्या था, विथ आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, विथ आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, हम लोग इसी में चेंज कर रहे हैं। और आप जरा ध्यान से देखिएगा, चेंज करें, हटा दें, वही तो मेन है। अब देखो चेंज कर रहे हैं, चेंज का मतलब अगर विथ आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न है तो नो रिटर्न का मतलब क्या हो गया, नो रिटर्न का मतलब हो गया कि अब ये यहां से रिटर्न नहीं करेगा और यहीं पे रिजल्ट आपको बता देगा, प्रिंट करेगा कि यस द number is an Armstrong. Else प्रिंट करेगा, प्रिंट the number is not an Armstrong. ये आपका हो गया मैनिपुलेशन का सेक्शन। अब कॉलिंग का सीन भी बदलेगा, क्योंकि आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट तो लेके जाएगा, लेकिन अब यहां से कॉल रिटर्न नहीं करेगा और यहां पे ये चेक भी नहीं होगा। अब यहां पे आपका जो ये चेकिंग वाला पार्ट है वो भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर ही रिजल्ट आपका प्रिंट हो रहा है, केवल ये आर्गुमेंट तो लेके गया बट इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न द रिजल्ट। तो दो हो गया आपका, ये था आपका with argument no return, it was based upon with argument no return। अब हाँ चेंज यहां हुआ, चेंज यहां हुआ तो चेंज यहां भी हुआ, क्योंकि जब रिटर्न कर नहीं रहे हैं तो फिर यहां पे किसी वेरिएबल को रखने का कोई मतलब नहीं बनता, मतलब रिजल्ट हमारा यहीं प्रिंट हो गया। तो चेंज आपको यहां भी करना था और यहां भी करना था, ठीक है। तीसरा, थर्ड है हमारा, थर्ड क्या है ना, नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न। तीसरा है हमारा नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न। जरा इसको भी देखिएगा। अब अगर आर्ग्यूमेंट नहीं है, सपोज देयर इज नो आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट नहीं है तो ये जो आप एंट्री देख रहे हो यहां पे Z, ये वाला लाइन यहां से हटेगा और ये भी हटेगा, ए भी हट जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू मेक नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न। अभी हमारा है नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न, तो यहीं पे आप क्या कर दोगे, आप लिखोगे A इज इक्वल्स टू INT इनपुट इंटर अ वैल्यू, और ये लाइन यहां अब आर्गुमेंट नहीं है तो ये इनपुट अब यहां से नहीं करेगा। तो नो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट नहीं है तो एक वैल्यू ले लिए ए को, और क्या कह रहा है विथ रिटर्न। तो देखो रिटर्न का केस फिर वही है, यानी आप जब फंक्शन को कॉल करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये प्रिंट वाला लाइन यहां से हटेगा और यहां क्या लिखना होगा, रिटर्न 1, और यहां पे क्या हो जाएगा, रिटर्न 0। और अब आपको यहां चेक करना होगा क्या, कि इफ k इक्वल्स टू 1 तो प्रिंट यस आर्मस्ट्रॉन्ग, else print not an Armstrong। That's it। तो this was based upon no argument with return। अब देखो आर्ग्यूमेंट नहीं है तो कोई भी नंबर लेकर ये यहां से नहीं जा रहा है, और आर्ग्यूमेंट का लिस्ट क्या है, यहां भी खाली है, लेकिन रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न कर रहा है तो यहां प्रिंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत। 3 हो गया, एक लास्ट बचा जिसको कहते हैं नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, ना तो कुछ है,
फोटो ले लो। नो आर्ग्यूमेंट, हाँ, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, दिस इज को अब हम लोग बनाने जा रहे हैं नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। इसको मत लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, यहां से लीजिए, यहां से लीजिए। तो अभी हो जाएगा आपका नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। क्या करना होगा, ना तो कोई आर्ग्यूमेंट है और ना तो कोई रिटर्न है, तो केवल रिटर्न वाला पार्ट चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, यहीं से आपका प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट यस एन आर्मस्ट्रॉन्ग, और यहां हो जाएगा प्रिंट नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग, और यहां पे भी चेंज होगा। देख लो, कुछ नहीं होगा, ये सब केवल फंक्शन तुम्हारा ऐसे ही कॉल होगा। दैट वाज द 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। होप इट विल बी क्लियर टू यू। और अब आप पे डिपेंड करता है कि अब आप किसी भी प्रोग्राम को किसी भी फंक्शंस पे आप बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दिस वाज द सिंपलेस्ट मेथड। इसका एक और भी ट्रिक मैं बता दूं कि आप जब फंक्शन बनाते हो तो फंक्शन बनाने में अगर परेशानी हो तो ऊपर में डेफ का जगह छोड़ दो आप और फंक्शन का मैनिपुलेशन पार्ट लिख दो। और केवल जैसे मान लो हम लिख रहे हैं तो फंक्शन लिखने के पहले क्या करेंगे, मैनिपुलेशन पार्ट आर्मस्ट्रॉन्ग का लिख दिए और उसके ऊपर जाके तुम लिख दो डेफ आर्मस्ट्रॉन्ग, दैट्स इट। और नीचे में कॉल कर दो फंक्शन को ऐसे आर्मस्ट्रॉन्ग, बस ये फंक्शन बन गया। और बीच में मैनिपुलेशन का पार्ट लाके रख दो। तो आप कभी भी फंक्शन एक बहुत ही आसान टॉपिक है, आप कभी भी फंक्शन के लिए बहुत हेक्टिक नहीं इसको बनाइए। इट इज द इजीएस्ट वे एंड मेथड टू मेक द फंक्शन। सो होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।